Good morning, students. Welcome back to maths class. Today, we will do differentiation of parametric equation. Earlier, we have done derivative of composite function, inverse trigonometric function, and then implicit functions. After that, exponential function, derivative of logarithmic function, and derivative of function raised to power function, that is also called logarithmic differentiation. So today we will start with differentiation of function which are in the form of parametric form, you can say, differentiation of function in parametric form. So what do you mean by parametric equation? See, a differentiation of function in parametric form, that is if y depends upon t and x also depends upon t. Earlier what happened, either y depends upon x or there is a relation between x and y. That is either function is explicit function or implicit. So today you can see both y and x depend upon t, and I am interested how to find derivative of y with respect to x. Or you can also say derivative of one function with respect to another function. So when this form is given like this, y is a function of t and x is function of t, then this t is called the parameter. And y is a parametric function of x, and you can say x is a parametric function of y. So how to find dy upon dx? We can find from here easily what? dy upon dt, because y is a function of t. So we can find dy upon dt. So what is dy upon dt? F dash t. And x is a function of t, that is x equal to g of t. So dx upon dt equal to g dash t. Now I am interested in dy upon dx. So dy upon dx is nothing. Here is dy upon dx. What you can do, you can divide dy numerator by t as well as denominator by t, like this. So dx upon dt. So this become dy upon dt and dx upon dt. So this become a new formula to find the derivative of a parametric equation. That is, if y is a function of t and x is a function of t. Here y is totally an explicit function of t. X is also totally explicit function of t. So now what you can say, dy upon dx is nothing but dy upon dt upon dx upon dt. So beta बाकी derivative बिल्कुल as usual है. Just formula is new for you. Otherwise all things are same जो आपने earlier की हुई, कुछ भी नया नहीं है. So see here this become the formula dy upon dx, dy upon dt upon dx upon dt. So let us come to the simple example. Here is a question that is y equal to at square. One function y is a function of t and another x is a function of t. Question is find dy upon dx. ये आपको फाइंड आउट करना है dy upon dx. मैंने मेंशन नहीं किया. So now see dy upon dt equal to, you know the derivative, a is a constant, a outside रहेगा, and derivative of t square is with respect to t हम कर रहे हैं 2t. Same way here dx upon dt, 2a is constant outside and derivative of t is 1. So ultimately you can find dy upon dx, and this is nothing, मैंने कहा था न्यूमरेटर को भी dt से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को भी. So this become now a formula, ये याद रखना. The dy upon dx equal to dy upon dt upon dx upon dt. Just substitute the value 2at upon 2a, this 2a and 2a cancel, you will get answer t. So very easy, you can do this on the same way. ठीक है, जितना भी आपने पीछे डेरिवेटिव किए हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिए जा सकते हैं. देखिए बोलने का लास्ट अगर एक्सरसाइज में मैं बात करूं तो पिछले एक्सरसाइज में बस यही क्वेश्चन होता था कि y इक्वल टू a secant q थीटा, फाइंड द dy upon d थीटा.
लेकिन अब 2 क्वेश्चन हो गए, ये भी है, x भी है, तो इसका मतलब मेरे को dy अपॉन d थीटा भी निकालना है और dx अपॉन d थीटा भी फाइंड आउट करना है। तो सी हियर क्वेश्चन इज फाइंड dy अपॉन dx व्हेन थीटा इक्वल टू π/3। ये तो बेटा लास्ट स्टेप है, जब डेरिवेटिव निकल जाएगा तो लास्ट में थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो मेन पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे। मेन पॉइंट आपके पास क्या है, y इक्वल टू a secant theta and x इक्वल टू a tan q theta. It means both they will depend upon theta, so we can find the derivative. dy upon d theta is equal to, with respect to theta derivative करेंगे, a is constant, that is outside. What is the derivative of secant q theta? Means function raised to power n. So n into n means 3 into secant square theta n minus 1 secant theta raised to power 3 minus 1 into derivative of secant theta. That you know, derivative of secant theta is secant theta tan theta. After little bit simplification, this becomes 3a secant q theta square theta and secant theta and tan. And here x equal to a tan q theta. So beta you can find derivative, that is 3 into a tan square theta into derivative of tan theta. So this becomes 3a tan square theta and derivative of tan theta, you all know, secant square theta. So now you have all the derivatives, dy upon d theta as well as dx upon d theta. I am interested in dy upon dx. So just substitute the value. What you will get, dy upon dx equal to dy by upon d theta whole upon dx upon d theta. ये वैल्यू बेटा ऊपर निकली है 3a secant q थीटा, ये देखो tan थीटा, और इधर से 3a tan square theta secant square theta, ये वैल्यू। Now what you will get, 3a and 3a cancel, यहाँ से q cancel हो गया स्क्वायर के साथ और एक tan square के साथ। So just you will get secant theta upon tan theta, simplify, secant means 1 upon cos, tan theta means sin theta upon cos theta न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है, cos and cos कैंसल 1 अपॉन sin थीटा। तो ये dy अपॉन dx। लेकिन बेटा मेरे से क्या पूछा था, फाइंड dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू π/3। π/3 मींस 60 डिग्री। सो dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू π/3, ऐसे लिखते हैं इसको, देख लीजिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, dy अपॉन dx एट थीटा इक्वल टू π/3, अगर ऊपर लिख लो कि पुट थीटा इक्वल टू π/3। तो 1 अपॉन sin π/3 equal to 1 upon root 3 by 2, that is 2 by root 3. So you can see easy concept है, बिल्कुल easily क्वेश्चन निकल गया। नेक्स्ट मैंने बताया इसी क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि आपने देखा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पूछा गया था, y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो बोलने का दो फंक्शन t के है, एक का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो इसी का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। सम टाइम क्वेश्चन ऐसे पूछा होता है, कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है ये कैसे करना। मैंने तो जनरली विद रिस्पेक्ट टू x क्वेश्चन आई नो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन जब पूछा जाता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, ये कुछ भी हो सकता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e रेज़्ड पावर x विद रिस्पेक्ट टू log x, कुछ भी इस तरह से पूछा जाएगा। तो सिंपल अप्रोच है बेटा, आपने क्या करना है, दोनों फंक्शन को लेट कर लेना है। देखो फर्स्ट है fx को y लेट किया, सेकंड को u। अगर अब आप ध्यान से दोनों को देखें तो हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड u इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब x बिकम अ पैरामीटर, तो जस्ट लाइक अ पैरामीट्रिक बन गया, जैसे वहाँ y इज अ फंक्शन ऑफ t होता था और अनदर वन x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो वैसे ही y इज अ फंक्शन ऑफ x, u इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x। इट मींस आई एम इंटरेस्टेड इन dy अपॉन du, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बेटा dy अपॉन dx मेरे को आता है आराम से, क्या होगा f डैश x, और du अपॉन dx भी मेरे को आता है, क्या होता है g डैश, क्योंकि y f x पे ये तो नॉर्मल डेरिवेटिव है मेरे लिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। आई एम इंटरेस्टेड इन dy अपॉन du, तो ये बिल्कुल वही पैरामीट्रिक का फार्मूला कि y x पे डिपेंड कर रहा है, तो dy अपॉन dx होल डिवाइडेड बाय du अपॉन dx कैंसिल, तो अल्टीमेटली dy अपॉन du ही है। तो इसका मतलब dy अपॉन dx इज नथिंग दैट इज f डैश x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडिंग बाय सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जब आपके पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन पूछा है, तो सिंपल वे से तो ये देखा जा रहा है कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो और दोनों को डिवाइड करो।
वो आपके पास dy अपॉन du। वी गॉट दिस पॉइंट। तो बिल्कुल इजी पॉइंट है, इसी को माइंड पे रखिए, माइंड पे बैठाइए, यही चीज चलेगी। इसका मतलब ये पैरामीट्रिक ही है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए किया है कि इफ one function is sin inverse x and another is cos inverse, क्या पूछा है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को y लेट कर लिया, सेकंड को u। ये बेटा वही बन गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x, u इज अ फंक्शन ऑफ x। मैंने कहा पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो क्या निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx, यू नो द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलने का पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ मैं कॉम्प्लिकेटेड भी दे सकता था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप उसको 2 tan इनवर्स x लिखते, फिर उसका डेरिवेटिव करते तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वे पे u इक्वल टू cos इनवर्स x, यू नो द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So now dy upon du is nothing but again parametric formula, dy upon dx whole divided by du upon dx. So this divided by this means -1। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, नथिंग इज न्यू बेटा, नथिंग। तो इसका मतलब ये रिवीजन ही है सिंपल डेरिवेटिव का, बस एक स्टेप को समझ जाए। देखो मैंने एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया, नो डाउट इसको आप डायरेक्टली बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसा पैरामीट्रिक, x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, फाइंड dy अपॉन dx। लेकिन अब ये प्रूव करने को बताया कि लास्ट में जब t आएगा तो उसको फिर एलिमिनेट कर देना, y और x में लिया। लेकिन मैंने इसको बेटे स्टार्टिंग से ही अलग वे से किया है। आप इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन की तरह कर सकते हैं सिंप्लीफाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल इस जिस तरह से आपको ऊपर और क्वेश्चन होता है। लेकिन देखिए एक और अप्रोच मैंने आपको यहाँ समझाई है इस क्वेश्चन में स्पेशली जो बन सकती थी, कि टी को ही एलिमिनेट कर दिया पहले ही, क्योंकि मेरे को टी तो चाहिए नहीं। तो ये बना y इक्वल टू a cos इनवर्स t, बट दिस वन इज होल अंडर रूट, नॉट, यहाँ लिखने में ये हो गया, ये होल अंडर रूट है। ठीक है, मैंने ऊपर ही कर दिया, नीचे ठीक कर दिया। और यहाँ आपके पास है साइन इनवर्स t। तो देखो ये a cos इनवर्स t एंड x इक्वल टू दिस, मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अंडर रूट में a साइन इनवर्स t अंडर रूट a cos इनवर्स t, ये आपके पास आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर आप क्या मिल जाएगा, बेस बेटा सेम हो गया क्योंकि पूरे का अंडर रूट 1 हो जाएगा, एंड नाउ बेसिस आर सेम, तो पावर विल बी एडेड, ये साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, एंड साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t इज नथिंग। फिर फार्मूला जैसे मैंने वो आपको अभी पीछे भी बताया था जब टेस्ट लिया था, कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2। तो अल्टीमेटली बेटा a की पावर पाई बाई 2, ये तो सारा ही कांस्टेंट t खत्म हो गया, तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर लो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1। बिल्कुल इजी, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, और इधर जीरो क्योंकि वो कांस्टेंट। और यहाँ से बेटा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। सो यू कैन डू, बहुत से क्वेश्चन ऐसे, मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं यहाँ दे सकता हूँ। यस, इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके, यू आर फ्री। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन है व्हाट्सएप कर दीजिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दैट इज द बेटर वे, या आपने क्वेश्चन किया यू कैन टॉक टू मी। ओके, अब बेटा इसको मैंने एक वे से किया, आप दूसरे से ट्राई कर सकते हैं पैरामीट्रिक वे से, ये मैंने आपको एक सिंपलेस्ट अप्रोच होता है। नेक्स्ट आपका पास बेटा इसी में है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट ऑर्डर अभी तक हम एक ही बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अब उस फंक्शन को दोबारा डेरिवेटिव कर लिया जाएगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। ये देखिए इधर क्या किया, बिल्कुल सिंपल सा ही है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या, ये मेरे पास फंक्शन दिया y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, dy अपॉन dx, इसको बेटा y1 भी कह देते हैं, y डैश भी लिख देते हैं, y डैश या y1 मीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंबॉलिक मीनिंग बताए होते हैं, आल्सो डिनोटेड बाय y1 या y डैश या dy अपॉन dx। देखो जैसे इधर डैश लगाते तो वैसे कई बार y में भी लगाया, तो ये तो f डैश x बन गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का y2 बन गया,
डैश लगाने हो तो डबल डैश बन जाता है, y डबल डैश मतलब 2 बार डेरिवेटिव, कि इसका फिर से डेरिवेटिव करो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो। तो रिप्रेजेंट में ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस यहीं तक हमारे सिलेबस में, फर्स्ट निकालो फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारे लिए कोई टफ काम नहीं है। देखो मेरे पास मेरा बोलने का अल्लाह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन होगा, मैंने क्या किया डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। व्हाट इज डी वाई अपॉन डी एक्स? दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2x। और फिर से ये एक फंक्शन है, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इधर जब दोबारा करूंगा तो इस साइड क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये क्यों ऐसे बनता है, एक्चुअली डेरिवेटिव का सिंबल ये है डी बाई डी एक्स, ठीक है। और किसका कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर डी स्क्वायर वाई अपॉन नीचे डी एक्स का होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है मीन डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो ये सिंबल जो है अब इसको आपने नहीं लेना, दिस वन इज नाउ सिंबल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड डेरिवेटिव मतलब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव यू नो 2, तो वही काम करेंगे। और फिर से अगर थर्ड ऑर्डर निकालना तो फिर डेरिवेटिव कर दो y3, यहाँ ट्रिपल डैश। तो ये प्रोसेस बेटा कंटिन्यू आगे तक ले जा सकते हैं। तो f ट्रिपल डैश x हो गया। अब यहाँ मैं अगर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालता तो क्या, 2 का डेरिवेटिव फिर से करता तो क्या होगा 0, तो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव 0 बन गया। अब फोर्थ करूंगा तो नेचुरली वो 0 ही चलेगा, फिफ्थ 0 ही। तो इस तरह से हम हायर ऑर्डर तक डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बट बेटा आपके जो सिलेबस में है वो सिंपल विच ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर तक हमारे से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेंगे अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप ढूंढेंगे। पहले आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है फिर आगे है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए किए हुए उनको देख लीजिए। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, सो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, आपसे पूछा वही गया, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, you know the derivative of x cube, yes 3x square, 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, so 3 2 जा कितना हो गया 6x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये यहाँ बेटा मैंने अभी बताया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर मीन्स 6x, 3 2 जा हो गया 6, x स्क्वायर का आपको पता ही है ना 2x होता तो 3 2 जा 6, और 6 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। अगर थर्ड ले जाना है तो मैंने कहा निकालो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू दैट इज इक्वल टू 6x का 6x का 1 हो गया और आगे 0, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग, सो d4y अपॉन dx4 इक्वल टू 0। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जहां तक कुछ चला जा सकता है, कंटिन्यू प्रोसेस। तो मेन आपका वही है कि भी आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आना चाहिए। तो आपसे बेटा पेपर में हालांकि सेकंड ऑर्डर तक ये पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक अच्छा ही क्वेश्चन किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है अगर आपके सीबीएसई में बात करूं तो ये क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान से देख लीजिए क्या किया है इस क्वेश्चन में। y इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर ये गिवन है होल स्क्वायर, सो दैट दिस x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू x प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। तो इसका बेटे 2 प्रोसेस है, y1 और y2 मतलब यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को बता। एक वे तो ये है कि आप इसके डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट ऑर्डर भी सेकंड और इस इक्वेशन में पुट कर दो, चेक कर लो इक्वल टू 2 बन जाती है तो ठीक है। और दूसरा देखना जैसे मैंने किया है वैसे ही एज यूजुअल हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। इट मींस मेरे पास गिवन क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x के लिए गिवन, मेरे को y1 y2 निकालने हैं तो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा dy अपॉन dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये बेटा फार्मूला बना फंक्शन रेज टू पावर n, सो यू नो n इंटू फंक्शन रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये ध्यान देना है आपने, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहने चाहिए जो मैं अभी कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ लगाया, देखो 2 इंटू tan इनवर्स x 2 माइनस 1 1 आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x एज यूजुअल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, मतलब जो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब बेटा मैंने इसको इजी बनाने के लिए
क्योंकि मैंने ऊपर क्वेश्चन में देखा था 1 + x² लेफ्ट साइड में ऊपर था, तो मैंने इसको लेफ्ट में ले लिया। ठीक है, इससे कोशिएंट रूल मतलब या तो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना है तो आप ऐसे ले आओ, अगर करना है तो डायरेक्टली भी यहाँ से सॉल्व करते हैं और लास्ट में सिंप्लीफाई। लेकिन मैंने बताया इजी बनाने के लिए मैं इस 1 + x² को इधर ले आया, क्योंकि प्रोडक्ट रूल इजी होता है, कोशिएंट रूल डिवीजन में लिखना पड़ता है। तो ये बन गया इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। अब आप बेटा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड, आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव मतलब dy/dx का जब डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, प्लस dy/dx, ये फर्स्ट सेकंड हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इधर 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बेटा 1/1 + x। just simplify 1 + x² d² y/dx², और यहाँ 2x हो गया बेटा 1 + x² का 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2 है, इंटू dy/dx एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर। ये देखिए, इसको हटा लेते हैं पहले। ओके, ये देखो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से 1 + x² इधर, तो 1 + x² होल स्क्वायर d² y/dx², यहाँ 2x है तो 1 + x² साथ आएगा, ये लिखा मैंने, और इक्वल टू 2 बच गया। और बेटा अब सिंबल यूज कर दो, 1 + x² होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव y2, और आगे ये 2x इंटू 1 + x² y1 इक्वल टू 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, लेकिन इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कहा देख लो एक बार क्या किया हमने, ये फंक्शन दिया था y इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना था। मैंने कहा एक वे तो ये था फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड निकाले, यहीं पर पुट कर दो, लेकिन जैसे बन गई अभी इक्वेशन, आप वैसे भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव आता है निकालना, फर्स्ट ऑर्डर निकाला, ठीक है, ये 1 + x² क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक तो जाना ही है आपको डेरिवेटिव, तो यहीं से प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy/dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव 2x, और tan इनवर्स x का 1/1 + x², 2 एज यूजुअल। जस्ट बेटा बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंबल यूज किए, यू विल गेट। सो वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन अगेन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम अल्टरनेट ईयर में हर टाइम आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, और पैरामीट्रिक इक्वेशन में आप डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, और साथ में आपसे पूछा है कि थीटा इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपको बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव तो आता है निकालना, आपको दिया है y इक्वल टू a इंटू 1 - cos थीटा, तो dy/d थीटा यू नो, a बाहर आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का माइनस रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन तो प्लस में, so a sin थीटा, and here x equal to a into theta plus sin theta, तो dx/d theta is nothing but a into, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1, sin थीटा का cos थीटा, तो बेटा अब dy/d थीटा और dx/d थीटा मिल गया, सो यू कैन फाइंड dy/dx, दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 / 2, 1 क्या है a sin थीटा, और 2 ये है a1 + cos थीटा, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, a एंड a कैंसल, sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, काफी बार ये सिंप्लीफिकेशन की है, sin थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2, and 1 + cos थीटा is nothing but 2 cos square θ/2, तो 2 से 2 कैंसिल बेटा, स्क्वायर से cos कैंसिल, sin अपॉन cos दैट इज tan θ/2। So now differentiating with respect to x, so again इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो लो, यही मेन ब्यूटी है, मैंने बोलने का मतलब यहाँ ये काम नहीं कर लेना कि d² x/d θ², वो नहीं निकालना, क्योंकि मेरे को dx² चाहिए होता है, d² x नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बिल्कुल पैरामीट्रिक फॉर्म से निकालते हैं, dy/dx, और आगे अब इसको फिर से डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो d² y/dx, ध्यान रखना किससे कर रहे हैं, x के साथ, और फंक्शन जबकि ये थीटा का, तो इसलिए थीटा डिपेंड अपॉन x रहेगा, तो tan ऑफ समथिंग मीन sec² समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, θ/2 का डेरिवेटिव 1/2,
अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाई होता तब तो 1/2 ही आता, लेकिन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, सो डी थीटा बाई डी। ये मेन कोई इंपॉर्टेंट स्टेप है। tan थीटा बाई 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का 1/2 बार आ गया और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा डी एक्स। और बेटा ये जो स्टेप है ये हम फर्स्ट स्टेप से इसकी वैल्यू यूज करते हैं, इसको उल्टा करके लिख देते हैं। देखो 1/dx/d थीटा, और 1/dx/d थीटा मैंने ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू होती है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यू कैन सी दैट वैल्यू हियर, ये देखिए dx/d थीटा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू पुट की, a आपके पास एज यूजुअल 1 प्लस कॉस थीटा का फिर फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का बन जाएगा 1/2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1/2 पहले भी है तो इसलिए 1/4 a सेकेंड 4 थीटा बाई 2। थीटा आपके पास π/2 है, पुट कर दो 1/4 a सेकेंड 4 π/4, और π/4 आपको पता 45 होता है। सेकेंड 45 की वैल्यू रूट आपके पास 2 होती है, तो रूट 2 की पावर 4 कितने बन जाएगी, रूट 2 की पावर 4, दैट इज 2 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 4, 2 स्क्वायर 4 ही बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1/, ये आंसर। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने आप पे है, जब वीडियो देखेंगे नोट करना साथ साथ में, और फिर जहाँ समझ ना आए रिकॉर्डिंग फिर सुनो। ओके, लास्ट क्वेश्चन जस्ट बाइंड अप करने के लिए एक और क्वेश्चन आपको सिंपल ले लिया है। If y equal to 5 cos x minus 3 sin x, prove that डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन है। फिर से दी, मतलब अल्टीमेटली डबल डेरिवेटिव है, नहीं पता लगे यहाँ डबल डेरिवेटिव पुट करो, ठीक है, y की वैल्यू ये पुट करो, सब 0 इक्वल टू 0 डायरेक्ट बन जाता है, तो डायरेक्ट सो dy/dx निकालना। फाइव कांस्टेंट cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और sin x का cos -3 एज यूजुअल रहेगा। यहाँ बेटा ये लिख दिया प्लस कर दिया, ये माइनस ही रहेगा, इसको करेक्ट कर लेना, मैं यहाँ से बता दूं। आपके पास था देखो 5 cos x minus 3 sin x, तो क्या किया 5 cos x minus 3 sin x, cos का डेरिवेटिव -5 sin x, एंड हियर -3, ये बाहर रहना था, साइन का कॉस है, तो ये माइनस साइन है, नॉट अ प्लस, कंसिडर दिस एज अ माइनस, एंड हियर आल्सो नाउ डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या बनेगा -5 cos x, और ये अब बन जाएगा cos का होता है माइनस, नाउ दिस बिकम प्लस 3 sin x। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, इनसाइड यू विल गेट 5 cos x और -3 sin x, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट माइनस आपका बाय आउटसाइड है 5 cos x -3 sin x इक्वल टू किसकी है, ये y के इक्वल है, तो ये बन गया -y, तो इसको बेटा लेफ्ट में ले जाएंगे, तो आपके पास ये स्टेप बन जाएगा d²y/dx² + y इक्वल टू 0। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, तो आपने अच्छे से इसको कर लेना है, ठीक है। ओके, और बेटा देखिए साइड वाइज आप लोगों का डेरिवेटिव जो है इसका फिनिश है, कल हम इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल थ्योरम, दो थ्योरम है, उसको लेकर के मेरे पास ये जो कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव का टॉपिक है ये टोटली फिनिश हो जाएगा। तो मैं होप करता हूं कि कल आपके पास कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट डेरिवेटिव से रिलेटेड होंगे, आप मेरे से पूछेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कल इसका फिनिश हो जाएगा, साथ ही हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर दूंगा आगे से, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो एप्लीकेशन में कुछ नहीं, जितना डेरिवेटिव आपने सीखना था सीख लिया, इसलिए लर्न ऑल द फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। ओके, थैंक यू वेरी मच।